Good morning. Today we will deal with chemical properties of glucose. आज हम ग्लूकोज के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज का सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपचयन कराने पर सॉर्बिटॉल या ग्लूसीटॉल बनता है। सॉर्बिटॉल को लाल फास्फोरस या HI के साथ 100 डिग्री पर अपचयन कराने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। नॉर्मल हेक्सेन का बनना 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति को निश्चित करता है। So we can say that glucose is reduced in presence of sodium borohydride, or we can say nickel catalyzed hydrogenation leads to the formation of sorbitol or glucitol, and this sorbitol or glucitol, when reduced in presence of red phosphorus and HI, leads to the formation of normal hexane. The formation of normal hexane shows that glucose molecule contain 6 carbon atom present in a linear chain. Reaction with HCN, that is glucose when react with HCN leads to the formation of D-gluconitrile and D-mannonitrile mixture. That is, जब ग्लूकोज को HCN के साथ क्रिया करेंगे तो हमें D-gluconitrile व D-mannonitrile का मिश्रण प्राप्त होगा। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया, that is reaction with hydroxyl amine. It is glucose when treated with hydroxylamine leads to the formation of glucose, oxim and water. जब ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें ग्लूकोज, ऑक्सिम और जल प्राप्त होता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। Both these reaction shows the presence of carbonyl group in glucose. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज ग्लूकोज की पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करने पर पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करती है। दैट इज ग्लूकोज when react with 5 moles of acetic anhydride or acetyl chloride in the presence of pyridine, it forms penta-acetyl glucose or glucose penta-acetate. This reaction shows the presence of 5 OH group in glucose, and these 5 OH group all are present at different carbon atom. Next is reaction with bromine water, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, अतः कार्बोनिल समूह होना चाहिए। दैट इज CHO ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक अम्ल का लाल फास्फोरस व HI के साथ अपचयन कराने पर नॉर्मल हेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, जो इसमें
कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर CHO समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। That is glucose when oxidized in presence of bromine water leads to the formation of gluconic acid. This gluconic acid is reduced in presence of HI and red phosphorus, leads to the formation of normal hexanoic acid. This shows the presence of terminal CHO group in glucose. Next is reaction with nitric acid. नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज की प्रबल ऑक्सीकारक दैट इज सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराने पर समान कार्बन वाला एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकेरिक अम्ल या सैकेरिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया टर्मिनल CH2OH समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। We can say when glucose is treated with concentrated nitric acid, that is strong oxidizing agent, leads to the formation of dicarboxylic acid containing same number of carbon atoms, say glucaric acid, or we can say also saccharic acid. This shows the presence of terminal CH2OH group in glucose. Next is reaction with Tollens reagent. टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। Now what is Tollens reagent? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम Tollens reagent कहते हैं, इसका फॉर्मूला Ag2 होता है। AgNO3 one react with ammonium hydroxide forms silver hydroxide and ammonium nitrate. The silver hydroxide on heating leads to the formation of Ag2O known as Tollens reagent. ग्लूकोज टोलन अभिक्रमक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। We can say glucose reduces Tollens reagent to silver mirror and itself get oxidized into gluconic acid. कह सकते हैं तो ग्लूकोज टोलन अभिक्रमक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। फॉर्मूला ऑफ फैलिंग विलयन इज क्यूप्रिक टार्ट्रेट सॉल्यूशन। ग्लूकोज फैलिंग विलयन को लाल क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। ग्लूकोज रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन टू रेड cuprous oxide and glucose itself get oxidized into gluconic acid. हम कह सकते हैं ग्लूकोज फैलिंग विलयन को लाल क्यूपरस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है और ग्लूकोज स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण करता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकृत विदलन। ग्लूकोज की संरचना परायोडिक अम्ल द्वारा इसके ऑक्सीकृत विदलन से भी निश्चित की जाती है। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज of glucose from parodic acid. ऑक्सीकृत विदलन में 1 मोल पराइडिक अम्ल अवशोषित करने के फलस्वरूप ग्लूकोज के समीप CHO समूह व OH समूह का विदलन
क्रमशः फॉर्मिक अम्ल व एल्डिहाइड में हो जाता है। हम कह सकते हैं निम्न अभिक्रियाओं का क्रम प्रदर्शित करता है कि CH2OH फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है, जबकि अन्य सभी कार्बन परमाणु, बाकी जितने भी अन्य कार्बन परमाणु हैं, ये 2, 3, 4, 5 अन्य बाकी कार्बनिक परमाणु फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अतः 5 मोल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मोल पराइडिक अम्ल के उपयोग से एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु, और 5 फॉर्मिक अम्ल के अणु बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। This is all about chemical properties of glucose. Thank you.